Yes friends, so we had started with blocked credit and हमने ये सीखा था that if our output, even if our output is taxable and the input we are using is mentioned in the list of items under section 17(5), then we won't get the credit of the input as it is a blocked item as per CGST Act. ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट देखा मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल, इनका परचेज और लीज, रेंट, हायर और इट्स सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एटसेट्रा, हमें इसमें से किसी की भी क्रेडिट नहीं मिलेगी एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस टू द कंडीशन. यस, देन हमने सीखा फूड्स एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, इनका भी हमें नहीं मिलता है एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस. ये भी एक एक्सेप्शन था इसका. ठीक है, और व्हेन इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड इट टू द एम्प्लॉयज, एंड ऑब्लिगेटरी थ्रू व्हाट? ऑब्लिगेटरी बाय सम लॉ. यस, let's continue with the third one. Membership of club, health and fitness center. So if you are taking membership of any club or health or fitness center for your employees, right, so you will not get any credit of it as it is mentioned under the list of blocked items. Travel benefits to the employees on vacation such as LTC or home travel concession. ठीक है, if you are sponsoring any travel trips of your employees, then the credit for the same will not be allowed. ITC is allowed when provided by the employer to its employees under statutory obligation. This is already what we have understood. Let us have a look at some examples. A manufacturing company purchases food items for being served to its customers free of cost. ITC on such goods is blocked. ठीक है, फूड आइटम्स पे आईटीसी नहीं मिलती है. AB and company, a caterer of Amritsar, has been awarded a contract for catering in a marriage to be held at Ludhiana. The firm has given the contract for supply of snacks to be served in the marriage to CD and Sons, a local caterer of Ludhiana. ITC on such outdoor catering services availed by AB and company is allowed. क्या बोला है? AB एंड कंपनी केटरर है, उनके पास क्या आया? एक ऑर्डर आया. उन्होंने क्या किया? वो ऑर्डर को फॉरवर्ड कर दिया एक और केटरर को. ठीक है, तो AB और कंपनी, सपोज हम AB एंड कंपनी, और हमने CD एंड कंपनी को क्या किया? अपॉइंट किया एज अ सब केटरर. मतलब वी आर द मेन केटरर्स, वी हैव सब कॉन्ट्रैक्टेड द जॉब गिवन टू अस. तो क्या CD एंड कंपनी मुझे जो बिल देगा, मुझे मतलब AB एंड केटरर को जो बिल देगा, ठीक है, क्या मैं उसकी आईटीसी ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि क्या है? ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस. ये था एक एक्सेप्शन. ठीक है, लिखा है ना, इनवर्ड सप्लाई ऑफ दिस सर्विस इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी. ठीक है, सो द सेम एक्सेप्शन अप्लाइज टू आवर एग्जांपल. So ITC on such outdoor catering services availed by AB and company is allowed. Fine. लेकिन AB and company ने जिसको बिल इशू किया होगा, यानी जिस बंदे ने AB and company को ऑर्डर दिया केटरिंग का, क्या उसको ITC मिलेगी? उसको ITC नहीं मिलेगी. ठीक है, उसके लिए सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है. ITC on outdoor catering services availed by a garment exporter for marketing event organized for its prospective customers is blocked. Outdoor catering service availed by a company to run a free canteen in its factory. The Factories Act requires the company to set up a canteen in its factory. ITC on such outdoor catering is allowed. क्या है भाई? आउटडोर केटरिंग सर्विस ली है, इसमें क्या मिलता है? क्या ITC नहीं मिलता है. लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट ने क्या किया? ऑब्लिगेटरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया फैक्ट्री के लिए कि आपको आपके एम्प्लॉयज को ये सर्विस प्रोवाइड करनी ही है, फ्री कैंटीन की. तो ITC on such outdoor catering services is allowed to the factory. ठीक है, allowed to the company. ठीक है, the managing director of a company has taken membership of a club, the fees for which is paid by the company.
ठीक है, मेंबरशिप ऑफ क्लब, उसकी क्या है, आईटीसी ब्लॉक्ड, तो आईटीसी एंड सच सर्विसेज इज ब्लॉक्ड. कंपनी अवेल्स सर्विसेज ऑफ अ ट्रैवल एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फ्री वेकेशन फॉर इट्स टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज, आईटीसी एंड सच सर्विसेज ब्लॉक्ड. लिखा है ना यहाँ पे ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज, क्या है ये, ब्लॉक्ड है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ नेम इन द लिस्ट, दैट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. फ्रेंड्स, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ठीक है. सो वेन एवर यू आर सप्लाइंग गुड्स अलॉन्ग विद द सर्विसेज, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को ऑर्डर दिया कि मुझे इस तरीके का फर्नीचर बनवाना है, ठीक है, कस्टमाइज्ड फर्नीचर, ठीक है, जो मार्केट में रेडी मिलता है वो नहीं, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग से बनवाना है. तो जो बंदा आया, आपने उसको बोला कि मटेरियल भी तुझे ही लाना है और सर्विस भी तुझे ही प्रोवाइड करनी है, तो मुझे कंबाइंड कोट दे. ठीक है, तो बंदे ने आपको आगे कंबाइंड कोटेशन दे दिया जिसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सब कुछ इन्वॉल्व था. आपने उससे क्या ली, लेबर सर्विसेज प्लस मटेरियल भी कौन लाया, वही बंदा लाया, आप अलग से मार्केट में परचेस करके मटेरियल नहीं लाए. सो व्हेनेवर यू गेट गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज. तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज होती हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों हमको कंबाइंड मिलते हैं, उसकी क्रेडिट तो मिलती है, लेकिन CGST लॉ स्पीक्स अबाउट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो क्रेडिट किसकी ब्लॉक्ड है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब फ्रेंड्स, हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया फर्नीचर वाला, उसमें जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने ली, उससे क्या बना आपका फर्नीचर. तो क्या फर्नीचर मूवेबल होता है कि मूवेबल? ठीक है, इन मैक्सिमम केसेस इट इज मूवेबल, तो उसकी क्रेडिट तो आपको मिलेगी बिकॉज इट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. यहां पे किस चीज की बात की है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, बंदे ने लेबर भी खुद लगाए, सारे मटेरियल भी खुद लाया, फाइन, और इस तरीके से उसने आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे दी. तो बिल्डिंग जो बनी वो क्या बनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये किस में दिया है, ब्लॉक्ड क्रेडिट में. ठीक है, मशीन का एग्जांपल लेते हैं. मशीन के लिए पहले साइट प्रिपेयर की गई, ठीक है, उसके बाद उस मशीन को क्या किया गया, इंस्टॉल, जिससे वो मशीन क्या बन गई, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, मशीन बनाने का आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपकी मशीन रेडी हो गई, उसके लिए एक साइट प्रिपेयर की गई, इंस्टॉल किया गया, उससे बन गई वो इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो ये क्या हुआ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो क्या इसकी क्रेडिट भी ब्लॉक्ड होगी, है ना, है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के अंदर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, जिससे हमें पता पड़ेगा कि क्या ब्लॉक्ड है और क्या एलिजिबल है फॉर क्रेडिट. ठीक है, सो लेट्स रीड इट. सो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी? इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या प्लांट एंड मशीनरी है? बोला यस, इट इज प्लांट एंड मशीनरी. तो बोला आईटीसी अवेलेबल. ठीक है, क्या बोला, आईटीसी मिलेगी, लेकिन इफ प्लांट एंड मशीनरी इज अदर देन टेलीकॉम टावर्स और पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री. आईटीसी तभी मिलेगी जब प्लांट एंड मशीनरी क्या है, इट इज अदर देन टेलीकॉम टावर्स और पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री. मतलब सभी के सभी प्लांट एंड मशीनरी की आईटीसी अवेलेबल है एक्सेप्ट टू विच टू, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एंड पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री. फाइन, तो ये प्लांट एंड मशीनरी का केस क्लियर हो गया. नाउ इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी? सो द आंसर इज नो. तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड? मतलब
जो आपने कंस्ट्रक्शन करवाया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, क्या वो कॉस्ट आपने कैपिटलाइज किया या उसको एक्सपेंस ऑफ किया? अब फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन का मतलब कंस्ट्रक्शन में आ जाता है न्यू कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ऐसी कई सारी चीजें कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आ जाती है। तो आप जब न्यू कंस्ट्रक्शन करोगे या मेजर रिनोवेशन या मेजर रिपेयर एक्सपेंस करोगे, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली उसको कैपिटलाइज करोगे, पीएनएल में तो डालोगे नहीं, है ना। लेकिन जब माइनर रिपेयरिंग वर्क हो, सपोज आपकी खिड़की का कांच टूट गया, ठीक है, तो इमूवेबल, आप योर विंडो इज द पार्ट ऑफ योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने नया कांच लगवाया, सो दैट इज अ माइनर एक्सपेंस, तो आप उसको क्या करोगे, पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर दोगे। तो सीजीएसटी लॉ ये कहता है कि जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराओ विच इज अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, और उसका कॉस्ट अगर आप कैपिटलाइज करते हो, तो आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, फिर चाहे आप अपनी ऑफिस बिल्डिंग बनवाओ कि आप अपना घर बनवाओ, ठीक है। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हेन वी अवेल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो क्या होगा, हमको क्रेडिट नहीं मिलेगी अगर हम उस कॉस्ट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज। लेकिन अगर हमने उस कॉस्ट को एक्सपेंस ऑफ कर दिया, क्योंकि वो माइनर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस थे, ठीक है, वो मेजर एक्सपेंसेस नहीं थे, तो आपने क्या कर दिया, उसको पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ, तो उस केस में क्या होगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं आप, जिसमें मटेरियल एंड लेबर बोथ यू अवेल अंडर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो मटेरियल भी है, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स क्यों नहीं बोला? बट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस है विच इज डिक्लेयर्ड अंडर CGST law that when you avail material and labor together, it is deemed to be service. It is declared as a service under CGST Act. So ये चैप्टर 2 में आपका आएगा स्पेसिफिकली, that works contract service is declared as a service, ठीक है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में आपने ये समझा कि प्लांट एंड मशीनरी अगर है अदर देन टेलीकम्युनिकेशन टावर्स और पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, तो क्या होगा, आपको क्रेडिट मिलेगी। अगर टेलीकम्युनिकेशन टावर्स और पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, अगर इसकी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली आपने तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। सो अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अगर मैं कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल करता हूं फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा? उसका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा अगर मैंने उसका कॉस्ट क्या किया, कैपिटलाइज किया। तो अगर उसको मैंने पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर दिया, तो क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका है कि एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है, अवेलमेंट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज बाय वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर फर्दर सप्लाई देन आईटीसी इज अवेलेबल। कहने का मतलब ये है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया ऑफिस बिल्डिंग बनाने का, ठीक है। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टर है जिसको मैंने क्या दे दिया, ऑफिस बनाने का काम। उसने वो काम क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब हो सकता है उसकी जो टीम हो वो बिजी हो, तो उसने क्या किया, वो काम सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरे बंदे से करवाया। तो जो दूसरा बंदा है, ठीक है, मान लीजिए मिस्टर बी, उसने किसको सर्विस दी, मिस्टर ए को, और मिस्टर ए ने किसको सर्विस दी, हमको, क्योंकि हमने ये काम किसको दिया था, मिस्टर ए, जो कि क्या है, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, उसको हमने काम दिया था। उसने वो काम किसको दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट किसको किया, मिस्टर बी को। तो मिस्टर ए को जो इनवॉइस मिलेगा, किससे मिलेगा, मिस्टर बी से। तो क्या मिस्टर ए उसकी क्रेडिट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि वही लिखा है, अवेलमेंट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बाय अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर फर्दर सप्लाई। तो मिस्टर ए क्या कर रहा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहा है मिस्टर बी से, और क्या कर रहा है, फर्दर सप्लाई, किसको, हमको। तो क्या मिस्टर ए उसकी क्रेडिट ले सकता है? मिस्टर ए डेफिनेटली उसकी क्रेडिट ले सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको रीड करते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी क्या मिलेगी, इसकी क्रेडिट क्या है, ब्लॉक। एक्सेप्ट व्हेन
It is the input service for further supply of works contract service. That is, only a works contractor can avail ITC on works contract services received by him. ठीक है. Second, immovable properties, plant and machinery. क्या बोला, ये क्या है, exceptions. तो if immovable properties, plant and machinery, तो क्या आपको क्रेडिट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी. However, ITC on works contract services used for construction of plant and machinery is allowed. ठीक है, सेम चीज लिखी है. ITC on works contract services used for construction of plant and machinery is allowed as an exception. Note, essentially works contract is a composite supply involving both goods and services. ये हमने समझा. works contract में क्या होता है? You receive both goods and services. Construction includes reconstruction, renovation, addition, alteration or repairs to the extent of capitalization to the said immovable property. Thus, if reconstruction, renovation, addition or alteration are not capitalized, it would not tantamount to the construction under GST law. मतलब क्या बोला है कि अगर जो रिपेयर, ऑल्टरेशन, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन है, इसको अगर कैपिटलाइज होगा ये, तो ही क्या होगी, इसकी क्रेडिट ब्लॉक होगी. नहीं तो इट वुड नॉट tantamount टू कंस्ट्रक्शन अंडर CGST लॉ. मतलब कहने का इसका मतलब यही है कि इसकी क्रेडिट को ब्लॉक नहीं माना जाएगा अगर इसको क्या करोगे आप, एक्सपेंस ऑफ करोगे, इसको आप कैपिटलाइज नहीं करोगे. कॉन्सिक्वेंटली ITC on works contract services availed for such construction which is not capitalized, whether for any immovable property or for plant and machinery, would be allowed to all the recipient irrespective of their line of business. ठीक है, वही बोला है कि आप एक्सपेंस ऑफ करो, कैपिटलाइज मत करो, तो क्या मिलेगा, ITC. लेकिन आप एक्सपेंस ऑफ कब कर सकते हो, जब ये रेवेन्यू नेचर का आइटम हो. कैपिटल नेचर का आइटम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज. ठीक है, कभी भी कोई न्यू कंस्ट्रक्शन कराओगे तो ऑब्वियसली यू विल कैपिटलाइज इट. ठीक है, उसको आप एक्सपेंस ऑफ नहीं करोगे. So ITC on works contract services for construction of telecommunication towers or pipelines laid outside the factory would be blocked at it cannot be said to be plant and machinery. ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ITC on works contract services availed by a software company for construction of its office is blocked. सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने क्या किया, अपना ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवाया, तो उसका क्या होगा, ITC ब्लॉक्ड. क्यों, क्या, और कंस्ट्रक्शन ऑफिस क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसलिए उसका ITC क्या होगा, ब्लॉक. CD and company, a works contractor of Noida, has been awarded a contract for construction of a commercial complex in Lucknow. ठीक है, उसको क्या मिला है, कॉन्ट्रैक्ट. CDN कंपनी को कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कहां पे, लखनऊ में. द फर्म अवेल्स सर्विसेज ऑफ EN कंपनी, अ लोकल वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर ऑफ लखनऊ. मतलब CDN कंपनी कहां पे, नोएडा में. काम कहां पे मिला उसको कंस्ट्रक्शन का, लखनऊ में. तो उसने क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, किसको, EFN कंपनी को, विच इज अ लोकल वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर ऑफ लखनऊ, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स. सो ITC on such works contract services availed by CDN company is allowed. ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस रहेगा, तो क्या होगा, क्रेडिट मिलेगा. ये हमने कहां पढ़ा था, एक्सेप्शन में. ITC on works contract services availed by an automobile company. ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज availed by an automobile company for construction of a foundation on which a machinery to be used in production process is to be mounted permanently is allowed. क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी बनवा रहा है वो, कैसा, इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है, उसके लिए उसने क्या कराया, कंस्ट्रक्ट अ फाउंडेशन ऑन विच प्लांट एंड मशीनरी कैन बी माउंटेड परमानेंटली. तो कैसा हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ. लेकिन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी. और प्लांट एंड मशीनरी के लिए तो इन एनी केस आपको ITC अलाउड है. ठीक है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में एक्सेप्शन क्या है, पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री एंड टेलीकम्युनिकेशन टावर्स. ठीक है, ITC on works contract services availed by a manufacturing company for construction of pipelines to be laid outside the factory is blocked. ठीक है, construction of pipelines laid outside the factory.
A consulting firm has availed services of a works contractor for repair of its office building. क्या करवा रहा है? रिपेयर किसका? ऑफिस बिल्डिंग का. द कंपनी हैज बुक्ड सच एक्सपेंडिचर इन P&L अकाउंट. मतलब क्या कर दिया? एक्सपेंस ऑफ. माइनर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस होंगे तो क्या कर दिया? एक्सपेंस ऑफ. तो ITC ऑन सच सर्विसेज इज अलाउड. सिंपल. ठीक है. टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज अवेल्ड सर्विसेज ऑफ अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिपेयर ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग. कंपनी हैज कैपिटलाइज सच एक्सपेंडिचर. तो ITC ऑन सच सर्विसेज ब्लॉक. अब 5 में भी रिपेयर है, 6 में भी रिपेयर है, लेकिन 6 में जो रिपेयर है वो कैसा होगा? मेजर रिपेयर एक्सपेंस होगा. ठीक है. तो मेजर रिपेयरिंग एक्सपेंस होगा तो उसने क्या किया होगा? कैपिटलाइज किया होगा. तो उसको क्या होगा? ITC उसका ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, इनवर्ड सप्लाईज विदाउट अवेलिंग सर्विसेज ऑफ अ वर्क कॉन्ट्रैक्टर. Inward supplies received by a taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery on his own account, even when such supplies are used in the course or furtherance of business, is blocked. अब ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से अलग कैसे है? बिल्कुल सेम तरीके की चीज है, एक जस्ट माइनर डिफरेंस है. आप इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं ले रहे हो, मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों नहीं ले रहे हो. आप क्या कर रहे हो? अपना जो फर्नीचर वाला एग्जांपल था, आपने फर्नीचर का मटेरियल खुद ला के रख दिया. ठीक है. आपको लग रहा था कि जो मैं जिस बंदे को काम दे रहा हूँ फर्नीचर मार्केट में 100 रुपये का मिलेगा अगर, तो वो क्या करेगा? 110 रुपये चार्ज करके मुझे आगे बिल फॉरवर्ड करेगा. ठीक है. तो कोई भी बंदा ऐसा करेगा, है ना. तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मटेरियल मैं खुद ले आता हूँ और केवल मैं इनसे क्या कर रहा हूँ? सर्विस अवेल करता हूँ कि आप फर्नीचर को आप क्या करो? डिज़ाइन कर दो मेरी कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ठीक है. तो उसको क्या बोलेंगे? इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल नहीं की. आपने कौन सी सर्विस अवेल की? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो फर्नीचर इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो ये केस जो है ये फर्नीचर को अप्लाई नहीं होगा, लेकिन किसको अप्लाई होगा? बिल्डिंग के केस में. ठीक है. या मशीनरी के केस में कि सारा मटेरियल आप खुद ले आए और आपने क्या करवाया? केवल मशीनरी को जस्ट आपने मशीनरी को मैन्युफैक्चर कराया या क्या कराया? उसको इंस्टॉल कराया. बिल्डिंग बनवानी थी तो आपने क्या कराया? मटेरियल सारा आप खुद ले आए. केवल कंस्ट्रक्शन का काम किससे करवाया? आपने कॉन्ट्रैक्टर से करवाया. ठीक है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते थे? मटेरियल भी वो लाता था और सर्विसेज भी वही बंदा देता था जिसने क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्ट. इस केस में क्या है? मटेरियल आप ला रहे हो, सर्विसेज दूसरा बंदा दे रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तभी ही क्या होगा? क्रेडिट ब्लॉक्ड हो जाएगा. ठीक है. इसमें भी एक्सेप्शन क्या है? प्लांट एंड मशीनरी. मतलब प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट जो ब्लॉक नहीं होगा. ठीक है. एग्जांपल देखते हैं. अ कंपनी बाइज सीमेंट, टाइल्स एंड अवेल्स द सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग. क्या? सीमेंट और टाइल्स खुद ले आया और आर्किटेक्ट से क्या करवाया? ऑफिस का कंस्ट्रक्शन. सो ITC ऑन सच गुड्स एंड सर्विसेज ब्लॉक्ड. है ना. सिंपल है. इसमें आप मटेरियल खुद ला रहे हो, उसमें आप मटेरियल सर्विस दोनों क्या मंगवा रहे थे? कॉन्ट्रैक्टर से मंगवा रहे थे. ठीक है. MN एंड कंस्ट्रक्शंस प्रोक्योर सीमेंट, पेंट, आयरन रॉड्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर वन ऑफ इट्स क्लाइंट्स. ठीक है. सो ITC ऑन सच गुड्स एंड सर्विसेज अलाउड टू MN एंड कंपनी. अब ये कैसे हुआ? ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का केस है फ्रेंड्स. ठीक है. सो सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज एक्सेप्शन इन दिस केस ऑल्सो. ठीक है. सब कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है. सेम लाइन ऑफ बिजनेस. वो क्या है? एक्सेप्शन. ठीक है फ्रेंड्स. सो क्या किया? MN एंड कंस्ट्रक्शन प्रोक्योर सीमेंट, पेंट, आयरन रॉड्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर वन ऑफ इट्स क्लाइंट्स. मतलब ठीक है, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और इनपुट क्या है उसका?
उसका इनपुट है सीमेंट, पेंट, और जो कॉन्ट्रैक्ट जो आप आर्किटेक्ट को जो पेमेंट करना है, डिजाइनर को जो पेमेंट करना है वो, तो क्या हुआ, उसका जो इनपुट है और जो आउटपुट है वो रिलेटेड है, मतलब जो उसको आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की, उसके लिए उसने क्या ली, इनपुट सर्विसेज विच इज द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब उसने काम को क्या कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. सो इन दिस केस ITC on goods and services is allowed to eminent company. Fine. Company buys cement, tiles, etc. and avails the service of architect for renovation of its office. The company has booked such expenditure in P&L account. ITC on such goods and services allowed. ठीक है. So friends, इस पॉइंट में हमको यही ध्यान रखना है कि जो भी एक्सेप्शंस पॉइंट नंबर 4 के थे वो सारे एक्सेप्शंस इसमें भी है. ठीक है. सो यू शुड नोट इट डाउन दैट ऑल एक्सेप्शंस pertaining to works contract service are also applicable in this case. ठीक है. ऊपर जो सारे एक्सेप्शंस थे वो सारे एक्सेप्शंस यहां पे भी है. The company has booked such expenditure in P&L account. तो क्या उसने कैपिटलाइज किया? कैपिटलाइज नहीं किया. कहां किया? P&L में बुक किया. तो क्या हुआ? तो क्या होगा? उसको ITC मिलेगा. बिल्कुल मिलेगा. ठीक है. ITC on goods and services used by an automobile company for construction of a foundation on which machinery is to be mounted permanently is allowed. कौन सा केस है? प्लांट एंड मशीनरी का. तो उस केस में तो क्या है? क्रेडिट अलाउ होती है. फाइन. A company buys material and hires a contractor to construction office building to house the plant supervisory staff. The input tax paid on such goods and services is not allowed as credit. ठीक है. मटेरियल खुद खरीदा और कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोल दिया? जस्ट टू कंस्ट्रक्ट द ऑफिस बिल्डिंग. तो उस केस में क्या होगा? ITC नहीं मिलेगी. यस. सो जितने भी क्रूशियल ब्लॉक क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस थे दैट वी हैव कवर्ड, अब कुछ 2-4 और बाकी हैं वो भी देख लेते हैं. इसको आप पेंडिंग रखिए. आपका कंपोजिशन स्कीम करके जो टॉपिक है वो आगे आएगा, तब उसके साथ ये समझ लेंगे. इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. यस. सो NRTP का भी कंसेप्ट आगे आएगा, इसको भी पेंडिंग कर दीजिए. गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन. तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया आपने, तो उसका ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा. से फॉर एग्जांपल आपका एक रिटेल स्टोर है ना, आप रजिस्टर्ड हो और आप इनपुट आउटपुट दोनों ले सकते हो. ठीक है. रिटेल स्टोर है आपका, आपने कुछ वेफर्स खरीदी. ठीक है. 4-5 ब्रांड की वेफर्स खरीदी, आपके पास 500 पैकेट है वेफर्स के. आपने उसमें से 10 पैकेट आपके घर के लिए यूज कर दिए. मतलब आपने क्या किया? उन वेफर्स को पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया. तो क्या उन 10 पैकेट्स क्या आप ITC ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, बिकॉज गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, उसकी ITC क्या है? ब्लॉक्ड. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? है ना. एग्जांपल देखते हैं. मिस्टर X owns a grocery store. He procures rice, wheat and biscuits for being sold to its store. ठीक है. राइस, व्हीट एंड बिस्किट्स खरीदता है स्टोर पे बेचने के लिए. Out of the inventory so purchased, he gives 10 kgs each of rice and wheat to his wife for household use. ठीक है. 10 kg wheat rice क्या किया? अपने घर पे यूज के लिए निकाल लिया. ठीक है. So being used for personal consumption, ITC on 10 kg of rice and 10 kg of wheat is blocked. Clear? Goods that are lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples. ठीक है. चोरी हो गए, है ना, डिस्ट्रॉय हो गए, स्क्रैप करना पड़ा आपको, या फिर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, फ्री सैंपल दे दिया, है ना, तो क्या होगा? उसकी ITC ब्लॉक हो जाएगी. फाइन. आपका कोई स्टॉक सपोज जल गया, तो आप एंट्री क्या करोगे? लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट. लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट कहाँ जाएगा? P&L डेबिट, है ना. और स्टॉक कहाँ क्रेडिट करोगे? एसेट में से कम करोगे. तो उस केस में क्या होगा? आपका क्या हुआ? स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया. तो जितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ उससे रिलेटेड जो ITC थी क्या होगा? उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा. ठीक है. उसकी ITC आप नहीं ले सकते. फाइन. आपने किसी अपने कस्टमर को फ्री सैंपल्स दिए. ठीक है. आपका कोई
कस्टमर आया, सपोज आप मैन्युफैक्चरर हो, आपके पास कोई होलसेलर आया, उसने बोला आपके प्रोडक्ट के सैंपल्स दो, है ना, मैं सैंपल्स वेरीफाई करके आपको बताऊंगा कि मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए या नहीं। तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने होलसेलर को 5 यूनिट दिए, ठीक है। तो उन 5 यूनिट जो मैंने उसको दिए, 5 यूनिट मतलब यूनिट यू कैन टेक इट एज केजीज और ग्राम्स और एनीथिंग, ठीक है। सो मैंने मान लीजिए 5 केजीज दिया अपना प्रोडक्ट, तो वो 5 केजी से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, है ना, उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, उसका क्रेडिट मुझे रिवर्स कर देना पड़ेगा। फाइन। नेक्स्ट, टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, 129 एंड 130। ये तीनों सेक्शंस फ्रेंड आपके सीए फाइनल लेवल पे आएंगे। फिर भी एक थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि है क्या, ठीक है। दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स पेड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेजन ऑफ टैक्सेस और अपॉन डिटेंशन ऑफ गुड्स और कन्वेंसेस इन ट्रांजिट और टुवर्ड्स रिडेम्पशन ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स। क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार है ना, लोग जीएसटी लॉ फॉलो नहीं करते, टैक्स कम भरते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, है ना। तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट आपके गुड्स कॉन्फिस्केट कर लेती है, गुड्स सील, आपके गुड्स सील कर देती है आपके, ठीक है। या फिर आपको एक डिमांड ऑर्डर भेजती है कि आपने इतने इतने टैक्स की चोरी की है, आप मुझे आके इतना पेमेंट करके जाओ। तो ये जो टैक्स पेमेंट आपने किया, वो आपने क्या इनपुट खरीदा तो आपने ये टैक्स पेमेंट किया? नहीं। आपने ये टैक्स पेमेंट कैसे किया? गवर्नमेंट ने डिमांड किया तब, या फिर आपके गुड्स गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट कर लिए, ठीक है, सील कर दिए, तो आपको गवर्नमेंट ने बोला कि टैक्स पे करो और अपने गुड्स ले जाओ, है ना। तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो क्या इस टैक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपने परचेज किया और आईटीसी पे किया, वो केस नहीं है। ये कैसा केस है कि आपने गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड किया, तो उसने आप क्या गुड्स क्या कर दिए, सील कर दिए, कॉन्फिस्केट कर दिए, है ना। तो उस केस में जो आपने टैक्स पे किया, उसकी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। फाइन फ्रेंड्स, जो सेक्शन 18 है, एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये हम देखेंगे आपके चैप्टर नंबर 7 के बाद, ठीक है। तो दिस इज चैप्टर नंबर 6, इसके बाद हम क्या लेने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7। तो जैसे ही वो चैप्टर खत्म होता है तब हम क्या ले लेंगे, सेक्शन 18। सो दिस विल लर्न आफ्टर चैप्टर 7 विच इज रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी आर कीपिंग दिस चैप्टर पेंडिंग, सिर्फ सेक्शन 18 है और थोड़ा एक आध दो सब टॉपिक्स हैं अंडर, ठीक है। Now we'll solve the exercise given in your module. फ्रेंड्स, एक चीज और क्लियर कर दूं कि आप जो भी मेरी नोट्स हैं, these notes are extracted from ICAI मटेरियल, ठीक है। आपका जो स्टडी मटेरियल है ICAI का, उसी से एक्सट्रैक्टेड है, एंड these are exhaustive। आप केवल ये नोट्स पढ़ोगे और आपके आरटीपी या पास पेपर्स या मॉक टेस्ट पेपर्स के आप एग्जाम्पल सॉल्व कर दोगे, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स में। आपको किसी और मटेरियल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज एग्जॉस्टिव एंड दिस मटेरियल कवर्स एवरीथिंग, ठीक है।